Okay, what is voice change? Voice change is something we have to change a sentence pattern. Okay, sentence pattern without changing its meaning. Okay, suppose this is the sentence, I eat rice. This is the sentence I am writing on the board. Here, I is the subject. Okay, eat is the verb and rise is the object here. Okay, so voice change is based upon the sentence. Okay, so this is called active voice. Voice change can be divided into two parts. First is called active voice and second is called passive voice. Okay, so in voice change, I have to change the whole sentence from active to passive. Okay, from active to passive. Okay, so sentence can be divided into three parts. The mechanism of the sentence. If I divide the sentence in according to the type, then affirmative, negative, optative, exclamatory, interrogative, imperative, these are the type of the sentence. But in mechanism, if I divide the whole sentence, the three part we can gain. The three part is subject, verb and object. तो वॉइस चेंज को कितना भाग में हम भाग कर सकते हैं? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. सर एक्टिव वॉइस किसको बोलेंगे और पैसिव वॉइस हम किसको बोलेंगे? एक्टिव वॉइस बोलेंगे रेगुलरली जो सेंटेंस को मेंटेन करके हम बात करते हैं उसको बोलेंगे एक्टिव वॉइस. ठीक है, जैसे हम खाना खाते हैं, स्कूल जाते हैं, फुटबॉल अभी हम खेल रहे हैं, कल हम फुटबॉल खेलेंगे, ये सब जो बातें हैं ये सब एक्टिव वॉइस है. ठीक है, इन एक्टिव वॉइस देयर इज नो यूज ऑफ बाई. बाई का इस्तेमाल नहीं होगा. ठीक है, एक्टिव वॉइस में बाई का इस्तेमाल नहीं होगा. जहां पे पैसिव वॉइस में आपको बाई यानी कि लिंकर का इस्तेमाल होगा. ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में कोई बाई इस्तेमाल नहीं होगा, पैसिव वॉइस में आप बाई इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे कुछ एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हम आपको लिख के दिखा रहे हैं. आई एम प्लेइंग football. This is the sentence written in active voice. Okay. Now, if I change the word into passive voice, then I have to divide the whole thing into subject, verb, and object. Here, I is the subject. Am is be verb. Am is be verb. Okay. Play is the main verb, and ing shows that it is in the form of continuous. Am playing shows that it is in the form of present continuous, and football it is the object. Football it is the object. I am playing football in the morning, then in the morning is the rest of the word. Okay, which we can use to give more knowledge for the whole sentence, for something extra I am adding in the sentence. So there is no value of rest of the word, the last word, the extra words, that it's called rest of the word. Okay, so look at the board. This is called active voice. In this type of sentence we use on a regular basis. Okay, so if I want to change the whole word, suppose this is the word I eat rice. So here rice is the object. Rice is the object. हाँ करेंगे, कर रहे हैं. This is the subject, verb and object. Okay, राइस को हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट में लाएंगे. ठीक है, नाउ आई हैव टू लुक एट द सेंटेंस जस्ट टू आइडेंटिफाई द टेंस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी ग्रामर आप कर रहे हो उसके लिए आपको इसका मीनिंग आना चाहिए. आई ईट राइस, हम भात खाते हैं. ठीक है, मेरे द्वारा भात खाया जाता है, अगर हिंदी में करेंगे तो ये आएगा पैसिव में. तो राइस इज ईटेन बाय मी. ठीक है, राइस इज ईटेन बाय मी. अब दो क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है, सर ईट तो था, आप ईटेन क्यों कर दिए? इज कहां से लाए और बाई कहां से लाए, मी कहां से आ गया? हाँ ठीक है, तो देखिए आई चेंज होके इधर मी आया, तो मेरा आई चेंज होके क्या आ गया? मी आ गया. ठीक है, अब देखिए ईट ये भार वन में था, मेरे को ये भाग का थर्ड फॉर्म में करना था.
अब देखिए सर, इधर प्रेजेंट टेंस में था, क्वेश्चन भी प्रेजेंट टेंस में था, तो हम इज भी प्रेजेंट टेंस में लाए हैं। आपको याद रखना पड़ेगा, इन वॉइस चेंज वी शुड नॉट चेंज द टेंस, there is no change of tense. If the question comes in past tense, I have to write down the whole sentence in past tense. Okay, so is उसीलिए आ रहा है, rise जो कि लास्ट में था हम उसको फर्स्ट में लाएंगे, is जो इंडिकेट्स कर रहा है प्रेजेंट टेंस को, eaten है ईट का थर्ड फॉर्म, आई यानी कि सॉरी बाई यानी कि लिंकर जो पैसिव को इंडिकेट कर रहा है, और आई को हम इधर नी किए हैं। ठीक है, तो चेंजेस सर क्या क्या होगा, ही रहने से हम लोग हिम करेंगे, क्या करेंगे, शी रहने से हम लोग क्या करेंगे, हार करेंगे, क्या करेंगे, हार करेंगे। ठीक है, यू रहने से डोंट लव, यू करेंगे, दे रहने से क्या करेंगे, देम करेंगे, दे रहने से देम करेंगे। अगर क्वेश्चन में डू आया तो इज करेंगे। ठीक है, डीड आया, ये ग्रामेटिकल है, डीड रहेगा तो वाज करेंगे, क्या करेंगे, वाज करेंगे, उसके बाद डन करेंगे, डू से इज डन। ओके, तो ऐसे करके भाग का थर्ड फॉर्म लाएंगे। तो देखिए फिर से एक बार समझाते हैं, वॉइस चेंज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। If the question comes in active voice, I have to change the whole thing in passive voice. In passive voice, we have to use by, the linker. Okay. In passive voice, the object becomes the subject and subject becomes the object after the linker. Okay. I have to put down the verb third form in as the changing of verb first form, that comes in the question in active voice. Okay. So this is the whole formula of doing voice change. Okay, now what I'm gonna that I'm doing, I will do 10 question, I will solve 10 question in voice change and show you what is the changing and what is the method of changing. Okay, first of all, when we have to solve a question, I have to identify what the tense is given in the question. Okay, so here did is past tense, simple past tense. Okay, after that I have to find subject, verb and object. Okay, here a sound is object, did not make is verb, they is subject. So this is object, this is the verb and this is the subject. Okay, now the formula is that put down the object as subject. A sound हम आपको सिखाए थे डीड रहने से वाज होगा, तो बैठाइए वाज नॉट, मेक का थर्ड फॉर्म सर होता है मेड, बाय देम, हो गया। नेक्स्ट देखिए स्प्रिंग, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट, फर्स्ट में आएगा, तो द गार्डन। ओके, हाँ, तो क्या होगा, फॉर्मूला हैज बीन, क्या होगा, हैज बीन। फॉरगॉटेन, देखिए ये थर्ड फॉर्म में ही है ना, तो फॉरगॉटेन बाय स्प्रिंग, हो गया। ठीक है, अब देखिए तीसरा, ये क्या है, सब्जेक्ट, ये कौन सा टेंस में है, पास्ट टेंस, पास्ट का कौन सा फॉर्मेट में है, कंटिन्यूअस, तो ये कौन सा टेंस में है, पास्ट, ये पास्ट का कंटिन्यूअस फॉर्मेट में है, कंटिन्यूअस है ना, ये पास्ट का कंटिन्यूअस, तो आंसर किस में होगा, पास्ट कंटिन्यूअस, खाली थोड़ा चेंजिंग कर देंगे, हिज फोन है ना, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, तो देखिए ऑब्जेक्ट हिज फोन was being charged, नहीं, was को did में नहीं, ठीक है, was को कभी भी did में नहीं, ing को क्या करेंगे, being करेंगे, charge को क्या करेंगे, charged, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, चार्ज को चार्ज करेंगे, ing को being करेंगे, was को
जैसे है बैठा देंगे। तो फॉर्मूला क्या हुआ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि आईएनजी जब रहेगा वो चेंज होके क्या होगा, बीइंग होगा, आगे का ऑक्सिलरी वर्ब बैठ जाएगा, और ये वाला जो है प्ले रहेगा तो प्लेड होगा, चार्ज रहेगा तो चार्ज ईडी होगा, सिंग रहेगा तो संग होगा, ऐसे करके चेंज होगा बाई। कोई डाउट बोलो। नेक्स्ट देखो, दे लव्ड एट द लेम मैन, है ना। लव्ड कौन सा टेंस में है, past tense, where you will found that there is ed in the sentence or word, that is called past tense. So the lame man was loved at दे से क्या हो जाएगा, देम। यहां पे क्या मिसिंग है पूरा सेंटेंस में, बाई मिसिंग है सर, बाई मिसिंग है। सो बाई रहने से ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, है ना। देखिए, दे डिड नॉट मेक एनी नॉइज। एनी नॉइज क्या है, एनी नॉइज ऑब्जेक्ट है, एनी नॉइज ये क्या है, भार्ब है, ये क्या है, सब्जेक्ट है ना। तो करो इसको, क्या बोलेंगे, कैसे करेंगे इसको, एनी नॉइज was not made by them। was कहां से आया सर, डिड से आया, मेक क्या करेंगे, मेड करेंगे, तो एनी नॉइज was not made by them। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए कॉन्टेस्ट। तो ए कॉन्टेस्ट इज आईएनजी है, तो क्या होगा, बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, है ना, बाय आवर, लिख लो। अब तक हम लोग क्या सीख रहे थे, एक्टिव से पैसिव, अभी हम लोग सीखेंगे पैसिव से एक्टिव, जहां पे हम लोग को फिर से ये बाई को हटाना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ रहा था, बाई ऐड कर रहे थे, अभी बाई को हम हटा देंगे, ठीक है। अभी देखिए, हम लोग इसमें से ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। देखिए, डिलीशियस मील, ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, है ना, ऑब्जेक्ट। पहले हम लोग क्या ढूंढते थे, सब्जेक्ट, है ना। तो देखिए, डिलीशियस मील्स आर प्रिपेयर्ड बाय द शेफ, ठीक है। अब देखिए टेंस क्या है, देखो टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस, आर मतलब प्रेजेंट टेंस। तो देखिए बहुत आसान है, लास्ट वाला को फास्ट में लाएंगे, लास्ट वाला को क्या करेंगे, द शेफ, ठीक है। द शेफ यानी कि एक आदमी, हाँ अभी भी सेम होगा, है ना, पहले भी जैसे होता था अभी भी सेम होगा, द शेफ। अच्छा, शेफ कितना है इधर, एक तो द शेफ इज, ठीक है, कितना है, इज एक है, इज प्रिपेयर्ड हुआ, ठीक है, कोई बाई नहीं लगेगा, एक है ना, एक है उसीलिए इज लगा। तो द शेफ, इधर शेफ्स होता तो क्या लगता, आर लगता, प्लूरल होता तो आर लगता। तो द शेफ इज प्रिपेयर्ड क्या होगा, हो गया, डिलीशियस मील। बस आसान है। उसके बाद देखो, पहले देख लो, देखिए हार है तो चेंज होके क्या होगा, शी। उसके बाद शी, संग का फर्स्ट फॉर्म क्या है, सिंग, है ना। हम लोग तो उल्टा कर रहे हैं, थर्ड फॉर्म तो इधर है, तो हम लोग क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, शी सिंग, क्या कर रहा है, शी सिंग ए ब्यूटीफुल, समझ में आया कैसे करेंगे। ये वाला देखो, देन क्या होगा, दे क्या हो जाएगा, दे, दे मतलब क्या, कितना आदमी,
बहुत, तो इज नहीं होगा, क्या होगा, आर होगा। वेरी गुड, दे आर। उसके बाद अच्छा दे आर करेंगे, दे क्लीन करेंगे तो ठीक रहेगा। दे क्लीन है ना, दे क्लीन, आर छूट जाएगा, है ना। दे क्लीन, किसको क्लीन करता है, हाउस को। अच्छा सर, आर को अगर हटा देंगे तो टेंस कैसे समझेंगे। इधर देखो आप, एवरीडे मौजूद है ना। या तो क्लीन नहीं करके हम लोग क्लींस करते हैं, ठीक है। दे क्लींस, इसका मतलब क्या हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। ये भी तो प्रेजेंट में ही है, तो चेंज हुआ, टेंस का कोई चेंज नहीं हुआ। तो वॉइस चेंज का जो नियम है वो भी हम पालन करें। दे क्लींस द हाउस एवरीडे, हुआ कि नहीं, कोई डाउट हुआ। उसके बाद देखो, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी, है ना। तो द कंपनी मैन्युफैक्चर्स, क्या करता है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अगर समझ में नहीं आएगा आप इसको क्वेश्चन मान लो, उसके बाद इसको चेंज करो। कैसे चेंज करेंगे, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स इसको लिखेंगे कि नहीं, प्रोडक्ट्स है तो आर करेंगे, देखो इधर आर है, इसका थर्ड फॉर्म करेंगे, देखो मैन्युफैक्चर्ड है। उसके बाद द कंपनी लास्ट में होगा, बाई के बाद, हो गया। अगर हम लोग क्वेश्चन को चेंज करके फिर इसी में लाएंगे तो आंसर परफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए, द कार इज रिपेयर्ड व्हेन ही ब्रेक्स इट, क्या होगा, देखो ही, है ना, इसको आगे करेंगे, ही रिपेयर्स द कार, ठीक है, व्हेन इट इज, ब्रेक का थर्ड फॉर्म करेंगे ब्रोकन, क्या करेंगे, ब्रोकन। देखिए ही, ये सब्जेक्ट है, मतलब इधर ये ऑब्जेक्ट के तौर पे, तो सब्जेक्ट में आएगा। ये देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इधर प्रेजेंट टेंस था, हम लोग इधर भी प्रेजेंट टेंस किए। किसको रिपेयर करता है, कार को। कब करता है, जब वो टूट जाता है ना। देखिए उसके बाद, द प्लेग्राउंड इज लव्ड बाय द चिल्ड्रन, इज लव्ड है तो लव्स करेंगे इसके तरह, द चिल्ड्रन, नहीं इज लव्ड को चेंज करेंगे ना, तो क्या करेंगे, लव्स करेंगे। लव्स किसको लव्स करता है, द, अब हंसो नहीं, बोर्ड की तरफ देखो। ए फूड इज प्रिपेयर्ड बाय सीता फॉर हर हस्बैंड, ये हम लोग का कोई काम का नहीं, ठीक है। ये क्या है, रेस्ट ऑफ द वर्ड है, ये क्या है, रेस्ट ऑफ द वर्ड है, ठीक है। तो सीता, सीता इज द ऑब्जेक्ट हियर, बाय आई हैव टू ऐड इन द सब्जेक्ट पोर्शन। सीता प्रिपेयर्स, प्रिपेयर्स ए फूड, फूड, अब लास्ट में जो है वो बैठ जाएगा, फॉर हर हस्बैंड, ठीक है, हो गया।